Okay, so hi everyone. My name is Raj, and I'm one of the person who is leading the taxonomy community, and we have a team for we have multiple folks in the community who are contributing in the developer ecosystem. So this session is all about like how to optimize backend efficiency, whenever we are creating a backend application, so we need to work on the optimizations part, which APIs or maybe which functions which will take a lot of time, or maybe best practices like how we can speed up the backend performance or API wala part. So here we have a Pramod, and he's right now working as a senior backend engineer at Uber, and he has a great experience like in terms of creating a backend system, large scale distributed system, microservices, or if I talk about the email server part, वो सारा इनको बहुत अच्छा knowledge है. And it's going to talk about like the backend part, like how we can speed up the backend, what are the best practices that we can follow. Yeah. So over to you. Yeah, Pramod. Thank you, Vrijraj, for that wonderful introduction. So yeah, today we are going to talk about the backend, like how do we optimize APIs for speed and efficiency. So before that, I would like to know कि कितनों ने backend पे काम किया? How many of you are purely front end? How many of you are full stack backend? Or what is your tech stack? Backend पे सबने काम किया है या फिर किसी के लिए backend is something which they have never touched? Anyone who has never touched? So Abhishek, okay, you have never touched backend. All right. Cool, कोई नहीं. I'll be speaking in lemon stem in between, and in case some कोई भी word लगे कि यार ये ऊपर से पार हो गया, just raise your hand and या फिर unmute करके बोल दो. I'll just stop there so that we can discuss that further. Okay. Cool. So let's get started then. So पहले आते हैं कि why are we having this session? Like why are we talking about backend का speed and efficiency? Like why does that matter? The thing is direct speed of any backend API that it directly impacts the business. How? If we have low latency, that means that will directly make faster response time. And if the API has faster response time, it will have better user experience. And if it has better user experience, it directly impacts the user retention, right? So आप लोगों में से सबके साथ ऐसा हुआ होगा, like because I'm sure it has happened with me, so I'm sure कि ये पहले I'm not sure आजकल कितना होता है, but पहले ये काफी होता था कि you search something on Google, जल्दी से रिजल्ट आ गया, you tapped on something, and then a website took a lot of time to load. So what do we do there? We just press back, वापस चले जाते हैं. Like we don't wait for that. I mean, if it is taking a lot of time, we don't wait, right? That's a pretty usual behavior. So that is why it directly impacts user. अगर आपका चीजें slow खुल रहा है, अब doesn't matter कि आप whether the API was slow or the image assets were really heavy or whatever may be the reason. If it is, so the thing is the whole system, including back and front end, everything has to work together to load fast so that user को अच्छा experience मिले. The industry standard for a good page load time, that is 3 seconds. Anything greater than that, that amounts to users dropping off. So yeah, that is why we need speed. It directly impacts the business. एफिशिएंट क्यों बनाना है? ताकि हम मेंटेन कर सके सही. इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंट होगा तो हम कंप्यूटेशन रिसोर्स कम खाएगा वो, ताकि जो रिसोर्स हेवी चीजें हैं हम उनको अलग तरीके से यूज कर सकें. if if we use less computation resource, we'll get less bills and also we'll save on energy, because आप जो भी कोड लिखते हो, it consumes some energy कहीं पे एक VM पे, even though it is not happening on your laptop. मान लो वो होस्टेड है यूएस में कहीं पे, यूरोप में कहीं पे, वहां के डेटा सेंटर में वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन विच काइंड ऑफ कोड यू हैव रिटन. सो वी नीड एफिशिएंसी, स्पीड, एवरीथिंग. सो ये है इंपॉर्टेंस कि हम अब आते हैं कि परफॉर्मेंस. व्हाट आर द मोस्ट कॉमन परफॉर्मेंस बोटलनेक्स? वैसे तो देयर आर अ लॉट ऑफ बोटलनेक्स, बट व्हाट आर द मोस्ट कॉमन वंस? Well, if anyone feels like okay, I'm going too fast, just let me know. Or if anyone has any query, you can stop me in between. So yeah, let's talking about the bottlenecks. So the first one is slow database queries. So it's like writing inefficient queries. For example, you have a table for users. Now
you and अभी आपके पास बस 10 एंट्री था while you were developing it. You made a query कि हाँ, I want to get a user with this email name. Let's say pramod@gmail.com. So when it was 10 users, it was working totally fine. But as it starts hitting traffic, and let's say you have million records, 10 million records, तब क्या? तब will it work the same way? No, because अगर हमने proper database indexing वगैरह नहीं की हुई है, there are some more things to it. If any kind of query which is slow and there are unnecessary joins to it, not proper indexing, that will make your database the response time slower. So yeah, that is one of the bottlenecks. How to reduce वो मैंने indexing वगैरह बोला, that will cover pretty उसके आगे भी will cover in the next slides. But yeah, that is one bottleneck, slow database queries. Then comes the n+1 query problem. What does it mean? Let's say you had to process some data, like 10 users have a app spend time. So everyone has an app spend time. Her user, let's say user A had 5 minutes, user B has 10 minutes, user C has some X minutes. You wanted to generate a report. I'm giving an example, okay? You wanted to generate a report. Key, how much was the total time spent? So now, if we do an operation, key, if you are looping through all the users and getting all the users one by one and adding their app time. So ये एक तरीका है, सम तो निकाल देगा, but this is not the most efficient way. The efficient way to do is to get all the data at once. Let's say आपके पास again ये paginated way में करना है. Like it's not like कि if you have million records तो आप million का एक ही बार में ले आओगे. You have to do it in paginated way, and in a page you can make a check that at once you are bringing 50 items or 100 items depending upon the transfer data size. So the thing is, it helps you. Let's say आप 50 अलग-अलग process करते, तो आपको 50 DB calls अलग-अलग करना पड़ता. And whenever you make a DB call, it opens a request, gets the data, returns the data, and then you have to close the request. So each time there is opening a request, closing a request. So the thing is, if you do it at a single query, it saves you that opening and closing each time. So that is one n+1 query problem. कि अगर हमें ज़्यादा data, it's like कि your mom asked you to go and bring 10 items, give you a list. but आप एक-एक करके जाके लेके आ रहे हो. That will take more time, right? Because आने जाने में भी time लग रहा है. It is not just about the data which has to come. So yeah, that is 1+1 query problem. Now the next thing is high latency network communication. So again, ये बहुत कम effort करता है, but yes, it does play a role when you have, let's say when you are optimizing your APIs for speed, no, every millisecond counts. Like when you are reducing them, even 2-5 मिलीसेकंड आप रिड्यूस करते हो तो दैट इज अचीवमेंट, बिकॉज एट ए पॉइंट ऐसा हो जाता है कि पता नहीं चल रहा कि कहाँ से हम बढ़ाएं, कहाँ से हम घटाएं इस लेटेंसी को, कहाँ से वी कैन इंक्रीज स्पीड. सो एवरी थिंग काउंट्स. सो यहाँ पे आ जाता है कि लेट्स से यू हैव ए सर्वर. लेट्स से जब फेसबुक ने सबसे पहले जब लॉन्च किया था, यूएस में कहीं पे सर्वर लिया होगा, दे मस्ट हैव होस्टेड इट. Let's say and now you are a user from India. So user from India will be getting a different ping, a user from Australia will be getting a different ping, and user from US will be getting a direct different ping. If it's just a one server communication, and if it is not using a CDN, if it is not using a distributed system, the thing is, because we are all located in different geographic conditions, different continents, it will directly impact the latency. So even that is one thing which can increase the ping, increase the relay time of an API. The next point is larger payloads. So whenever we are dealing with larger payloads, if we just directly send it over without using any compression, even that can add up to your a few milliseconds. So whenever we are using larger payloads, just make sure. Even larger payloads is a bottleneck. Whenever we use that, we need to use compressions. Which kind of compressions, that we can talk further in the next slides. But talking about bottleneck, this is one of them. Now, next bottleneck is performing CPU intensive tasks. What are CPU intensive tasks? जो कोड आपका ज़्यादा रिसोर्स खाए. जैसे for example, you must have used a tool like online photo resizing, online photo cropping, background remover. So image resizing या image related जो भी होते हैं, या multimedia. Let's say online video का tool. You want to crop something, you want to add something on that text, video, image related. These are examples. और भी चीजें होते हैं complex operations.
but image, video, multimedia, these are complex operations जो CPU intensive होते हैं. They consume more resource in your CPU than the other tasks of normal read, IO, those things. ठीक है. So इसमें क्या होता है? For example, in Node.js, JS is a single threaded language. So इसमें क्या होगा कि अगर हम अपने मेन थ्रेड पे इमेज की प्रोसेसिंग करें, इट विल ब्लॉक द मेन थ्रेड एंड बाकी जो नेक्स्ट इसके बाद जो भी चीजें होंगी वो अटका रह जाएगा टिल द टाइम दिस दिस थिंग इज रिजॉल्व्ड एंड सेंड बैक. तब तक चीजें अटका रहेगा. तो सीपीयू इंटेंसिव टास्क ये परफॉर्मेंस बोटलनेक एक होता है कि मेन थ्रेड खाता है. So we don't want to do it on the main thread. So one is this. Second is synchronous. तो synchronous code क्या होता है? Let's say if you have written synchronous code, वो line by line चलेगा, and let's say if it makes a third party API call, and वो API काफी ज्यादा टाइम लगा रहा है, and आपका कोड synchronous था, तो in that case it will wait कि वो जब तक डेटा रिटर्न ना कर दे, the other line of code won't execute, even though it was unrelated. Like if it was unrelated to it shouldn't be waiting, but because it was synchronous, it is waiting for the API कि वो डेटा रिटर्न करे, उसके बाद मैं चलूंगा. So ये भी एक bottleneck होता है. So these are few performance bottlenecks जो common होते हैं backend में. I think one of my slide just missed. Yeah. All right. I think वो गलती से delete दब गया है, but let me tell you. There is one more thing कि performance bottlenecks तो हो रहे हैं, but how do we know about this? How do we profile? So profiling के लिए कि how do we analyze this? Profiling के लिए there are some tools which we can use, like let's say clinic.js. So clinic.js का ना एक tool, Node.js का inbuilt profiler भी आता है. If we use the Node.js का inbuilt profiler, वो एक CLI tool है. It will give you the CPU overhead, the how much memory is it consuming, and how much RAM. ये सब चीजें हम सिमुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं. फिर there is a very common tool called clinic.js, and उसमें क्या है, उसका एक tool है Clinic Flame. So what it does is it gives you an overall data whenever you run कि which particular block of code was consuming how much of resources. So you can get block-wise report if you use clinic.js. So those are few things, few tools which can help you analyze कि ये bottlenecks जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है. The thing is, अगर problem हो रही है तो you need to find, right? एक auditing का एक tool चाहिए. So that is where they come into the picture to identify. Now, moving ahead. Okay. So ओके, नॉट बोटलनेक्स हो गया खत्म. अब आते हैं कि अब हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं कि व्हाट डू वी डू टू इंक्रीज द स्पीड. सो एपीआई के बैकएंड के एपीआई के स्पीड बढ़ाने के लिए वी इंप्लीमेंट कैशिंग. वन ऑफ देम इज कैशिंग. सो व्हाट डू वी मीन बाय कैशिंग कि कैशिंग हमारे काम कब आता है? लेट्स से फ्लिपकार्ट का आज बिग बिलियन डे का सेल है, एंड आज बहुत सारा ट्रैफिक आने वाला है फ्लिपकार्ट पे, एंड बहुत सारे पीपल विल बी गोइंग एंड क्लिकिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेक्शन कि इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग करनी है आज हमने. सो डज इट मीन कि अगर मान लो आज 100, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ 100, बहुत सारे यूजर्स आएंगे, बट लेट्स से 100 यूजर आते हैं, तो क्या 100 के 100 जब भी वेबसाइट खोलेंगे इट विल मेक ए क्वेरी एंड गो टू देयर डेटाबेस, रीड द डेटा, कौन सा आइटम से इलेक्ट्रॉनिक्स में, गेट दैट डेटा एंड देन शो इट टू द यूजर 100 के 100 के लिए? But no, that is a very expensive operation. I mean, DB read, DBIO is an expensive operation, and also it is taking extra time. So to avoid, and the thing is, उन params के लिए आपको data same वही data सबको मिलना है, तो एक फालतू का DB operation बार-बार बढ़ रहा है. So to avoid this, we add a layer of caching mechanism in between the client and server. एक client था, then there was a DB server. तो उन दोनों के बीच में there is a cache server which comes in between. So now what happens is, let's say I am a user A, I make a request, it checks on the cache server कि क्या इस particular route का data आपके पास है क्या, if नहीं है, it goes to the backend server जहाँ पे DB server जहाँ पे it gets the data, then it returns, cache server में it adds that data, and then it returns to the user A. Now when a user B comes in, now a user B makes the same request with the same parameter, goes to the cache server says yes, I have this data now. Now अब से for that exact same parameter
it won't be hitting the DB. Now it will pick it from the cache. तो हमारा जो DB रिले था एंड DB बार बार कनेक्शन पूल खोलना, रीड करना, वो हमारा 2 को कम हो गया, DB का कॉस्ट हमारा यहाँ पे कम हो जाता है. तो द थिंग इज हमारा जो DB का VM है उसका भी CPU यूसेज यहाँ पे कम हो जाता है बिकॉज वी आर टचिंग इट लेस नाउ. जहाँ पे where it is needed, where it's a new kind of request, new params, that is where we are touching it. बाकी उसके अलावा हम कैश कर रहे हैं, कैश इज वे फास्टर. हाँ या कैश में आप रेडिस में कैश दिए इन मेमोरी कैशिंग के लिए आप यूज कर सकते हो. फिर then you can do HTTP caching as well. That happens on server level, and then there comes reverse proxy caching. So क्या होता है reverse proxy caching? Any idea? Anyone heard of it? कुछ पढ़ा कहीं पे? आईपी डिस्क्लोज नहीं होती है सर्वर की, जैसे रिक्वेस्ट होती है कहीं और जाती है, फिर वो आगे प्रोसेस करता है सर्वर की. हाँ, आईपी डिस्क्लोज नहीं होती एंड कुछ फायदे भी होते हैं, तो वो मैं बताता हूँ कि तो रिवर्स प्रॉक्सी क्या है ना, वो एक इंटरमीडिएट सर्वर है जो which sits between the client and your backend server. So like there are examples like if we use for reverse proxy like Varnish or Nginx, it can cache the API response at the edge and it stores the response to the common request to the closest clients, and whenever a client makes a request वो अपने proxy से वो data देता है. So it acts as a proxy server. So and it directly impacts by होता है ना, reducing the workload on the main server. So that is one. And while implementing any kind of cache, we need to make sure that हमारा जो cache invalidation strategy है that is good, or else what will happen is, let's say I have a cache on Redis which has a value, let's say A, and A ka it has a data. Let's say A is a user, and A user updated his email tomorrow, and if someone made a get request and हमने अगर अपडेट यूजर ए ने अगर अपना ईमेल अपडेट कर दिया है, एंड इफ वी हैवंट अपडेटेड दैट ऑन कैश एज वेल, सो वील बी गेटिंग द ओल्ड डेटा, राइट? बिकॉज कैश सर्वर सेड दैट या वी हैव दैट डेटा बट इट हैज द ओल्ड डेटा. सो हमें वैलिडेशन भी करनी होती है कि हर कैश की टाइम टू लिव क्या होगी. वी सेट अ TTL टू इट कि हाँ दिस विल बी द TTL टू इट. सो लेट्स से क्या कोई भी कैश है, वी वांट इट टू एक्सपायर इन 7 days, 10 days. There are some caches which we don't want to expire ever, and even though किसी का expiry time ज़्यादा भी होगा, we can update it anytime we want. Let's say किसी ने अभी update मारा, we have updated that in the DB and updated that in the cache as well. कि anyone hitting the cache server now will be getting the data from the cache, the updated data from the cache. So yeah, caching mechanism के साथ we have to make sure about this as well. And caching से it improves the ping way higher. Then comes network का performance. हाँ, यहाँ पे so जब भी we make a request, be it get request, हम या फिर ब्राउजर पे खोलते हैं, ब्राउजर पे हमारा डेटा आता है, इमेज लोड होता है, any kind of data exchange between client and server, we use some kind of encoding. Most commonly are Brotli or gzip. Again, depending upon what is your use case, like whether user mostly like text content or mostly like image, music, audio, multimedia, any kind of format. Depending upon that, you can opt between Brotli and gzip. But we हमेशा कोई ना कोई compression we need to use so that raw data का format, because raw data का format is pretty. Did someone raise a hand? Okay. All right. फिर आता है कि हमें नेटवर्क लेवल पे भी ऑप्टिमाइज करना है. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? सो होता क्या है ना, इन अ टिपिकल नेटवर्क कम्युनिकेशन, द डेटा, एनी काइंड ऑफ डेटा दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पैकेट्स दैट आर सेंट इंडिविजुअली टू द रेसिपिएंट्स, एंड समटाइम्स दीज पैकेट्स कैन बी लॉस्ट ड्यू टू इश्यूज लाइक नेटवर्क कंजेशन हो गया, फॉल्टी हार्डवेयर, लाइक अगर केबल में कहीं पे इशू था तो उसमें भी डेटा का लॉस हो सकता है. सिग्नल इंटरफेरेंस अगर कहीं पे हुआ तो उससे भी डेटा का लॉस हो सकता है. एंड व्हेन द पैकेट्स आर लॉस्ट, द डेटा कैन नॉट बी करेक्टली रीअसेंबल्ड, लीडिंग टू इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और फेल्ड ट्रांसमिशंस. तो यहाँ पे पैकेट लॉस में रिकवरी मैकेनिज्म्स कम्स इनटू पिक्चर.
they are designed in such a way that they can detect the packets they are lost, and they can ensure कि वो retransmit हो, so that user को who requested the data, they get the whole data packet, ताकि उनको एक corrupted file ना मिले. Now this is typically achieved using TCP protocols. So how it works is whenever, so जहाँ भी data loss हमें वो avoid करना होता है, there we use a handshaking mechanism where the client gets the data and client has to acknowledge that yeah I got the data. जब तक client doesn't send that acknowledge true, acknowledgement 200 जब भी नहीं भेजेगा, जब तक नहीं भेजेगा, it will keep sending the data कि okay, ये PubSub में आप लोगों ने देखा होगा, if anyone has integrated it, whenever you get a request from PubSub, you have to acknowledge that yeah I've got it, or else it keeps sending the same data कि हाँ भाई आपको नहीं मिला अभी तक, आप लेते रहो, ताकि डेटा लॉस ना हो, यूजर whoever initiated the request gets the data. One example is, imagine you are streaming a video over a unstable Wi-Fi connection, and if the packets of video data are lost, then the video might freeze or skip. ये केबल टीवी वगैरह इन चीजों में कभी होता हुआ दिखता हो कि वीडियो आ रहा है, वीडियो फीड, बट थोड़ा सा बज हो गया. लाइक किसी ने देखा है, किसी के साथ ऐसा हुआ है? आई मीन पहले तो मैंने तो जरूर देखा है, आई मीन पहले, nowadays I haven't seen, but पहले देखा है कि डॉट 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 सा हो गया, बट वीडियो डजंट स्टॉप, इट कीप्स गोइंग ऑन. सो वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे हमारा पैकेट लूज हो रहा है, बट वो चलता जा रहा है. बट इफ वी YouTube, then there is another kind of streaming, जैसा आपने YouTube में देखा होगा. YouTube में it doesn't happen कि आपका, let's say आपका पैकेट का लॉस हुआ, पैकेट नहीं आ रहा, तो it won't be showing you the laggy thing like dot 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 ऐसे बज करके आएगा एंड बट चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा. What it will stop, wait for all the packets to come in, reassemble and render, and then show it to you. तो वहां पे जो it waited for everything, acknowledged that yeah I got, फिर उसके बाद आपको फीड हुआ. तो यहाँ पे जो यूजर who initiated the request, उनको तो पैकेट का लॉस नहीं हुआ, he got all the data which he wanted, right? So these are the kind of optimizations which we can do. Again we need to check कि हमारा requirement क्या है. अगर हमारा requirement है कि हमें पूरा स्ट्रीम करते रहना, doesn't matter what, we can do that. अगर requirement है कि जरूरी कि accurate data आए, we need to show that, doesn't matter if you have to wait, we need to do that. So that is network level पे भी optimize हम कर सकते हैं. And फिर अगर हम फिर next आता है reducing latency with by using CDNs. So CDNs are what? CDNs are content delivery networks. So ये edge servers होते हैं which are distributed across the globe, across the continent, बहुत सारे जगह में होते हैं. So what happens is, अगर आपके वेब सर्वर पे आपने CDN यूज किया हुआ है, तो whenever a user makes a request, they go to the closest edge server and वहाँ के CDN से उनको डेटा आ जाती है. So that also impacts ensures कि you have better network performance enabled, configured for your web server. So that is one. फिर आता है security and performance. Now किसी के माइंड में आया होगा कि भाई हम तो स्पीड और एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, सिक्योरिटी कहाँ से आ गया बीच में? सिक्योरिटी इज टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट, राइट? इसमें हाउ इज स्पीड गेटिंग इंपैक्टेड और एफिशिएंसी गेटिंग इंपैक्टेड? बट इट डायरेक्टली गेट्स इंपैक्टेड. हाउ? लेट्स से आपके पास यू हैव एन एपीआई जिसका पिंग बहुत सही है, डिलीवर्स, यू हैव अ गेट एपीआई व्हिच रेस्पॉन्ड्स विद इन 10 मिलीसेकंड का जिसका रेस्पॉन्स टाइम है. Pretty cool, right? Pretty fast. But if security is not tight in place, what can happen is, let's say someone does a DDoS attack. Someone makes a million requests, 10,000 requests per minute, million requests per 10 minutes. भले ही आपका API बहुत फास्ट था, now your server will be busy responding to that request, serving that request, right? Now अब slow हो जाएगा वो. भले ही आपका API बहुत फास्ट था, but because security was lacking, it impacted your speed, your availability, your resources, everything. So हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है. So that is why. So अब हम इसको how will we tackle this? We can introduce something called rate limiting to prevent such kind of abuses. Rate limiting क्या होता है? किसी ने anyone heard about the term rate limiting? या किसी ने use किया है? क्या है ये?
एपीआई को बार-बार कॉल करके पैसा बढ़ाना सर्वर का, सिंपल सा। यस, राइट, कि बार बार कॉल कर रहे हैं कि मैंने एक बॉट चला दिया, मान लो मुझे कुछ करना है, मैंने एक बॉट चला दिया, वो बार बार उस एपीआई को कॉल कर रहा है, एंड एट द एंड जिसका एपीआई है वो उसके बिल बढ़ रहे हैं या फिर उसका रिसोर्स अनअवेलेबल हो रहा है, वट एवर मे बी द गोल, बट हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। एक बॉट बना दिया किसी ने, आपके कंप्यूटर ने एक बॉट बना दिया, वट एवर। सो अब हम क्या करेंगे, टू इंट्रोड्यूस ए रेट लिमिटिंग फीचर। रेट, हाउ डज रेट लिमिटिंग वर्क्स इज, लेट्स से मैंने एक बॉट बनाया है एंड मेरे एंड से बार बार रिक्वेस्ट जा रहा है। सो अब जो रेट लिमिटिंग सर्विस है, इट विल चेक कि उसी पर्टिकुलर आईपी से, उसी पर्टिकुलर मैक एड्रेस से कितने हमारे को रिक्वेस्ट आ रहे हैं, आईपी का मैप करेगा, एंड एक हमारा एक डिफाइंड होगा कि ओके पर आईपी पर मिनट दिस इज हाउ मेनी रिक्वेस्ट विल अलाउ। उससे ज्यादा अगर होगा तो विल मार्क इट एज सस्पिशियस। फिर सस्पिशियस वाले फ्लैग में से भी अगर वो और ज्यादा रिक्वेस्ट आता गया, फाइनली विल बैन इट। एंड उसके बाद वंस एनी आईपी इज बैंड, any request, any get request, any kind of request coming to that server, the rate limiting service will check कि क्या ये IP ban list में है। If yes, no सर्वर पे कोई प्रोसेसिंग नहीं होगा, कोई रिक्वेस्ट आगे नहीं बढ़ेगा, कोई डीबी कॉल या वगैरह कुछ नहीं करना है, वहीं से उसको दे देना है, लाइक एरर कोड वट एवर, लाइक 503 400 वट एवर, 503 सर्विस आने वाले उनके लिए इट विल बी बैंड। पोस्ट दैट, लाइक लेट्स से अगर हमने सेट कर रखा है कि 1 मिनट में 50 बार ही एक आईपी कर सकता है, अगर वो 51 बार कॉल करता है उसके बाद से द सर्वर विल बी अनअवेलेबल फॉर हिम, विल बी दैट आईपी विल बी बैंड। सो दैट इज द रेट लिमिटिंग। So rate limiting helps us protect from DDoS वगैरह, and so we can use any kind of web application firewall. So even Cloudflare's offers a very nice DDoS platform कि उससे हम बच सकते हैं। AWS का भी, I think it's called AWS Shield, but yeah, AWS Shield I've heard it's very expensive. Cloudflare का तो free आता है, I mean बहुत, and that's nice. So it helps you filter, monitor, block malicious traffic even before it reaches your backend. So that's pretty cool. Any questions abhi tak? Anything? Okay, I'll take that as a no. Seems like I'm a pretty good orator. All right. Now, जब हम okay, now that we are talking about speed and efficiency, and जब हम backend की बात कर ही रहे हैं, so obviously we'll scale, and if we scale, तो वहाँ पे भी हमें we have to ensure कि हमारा speed बना रहे, right? And APIs का response time अच्छा रहे, doesn't matter कि traffic कितना ज़्यादा आ रहा है। तो how do we do that? Let's say हमारे पास अभी एक server था, it was handling 10,000 users pretty well. Now when we have reached to a point कि जहाँ पे हमारे पास million users है, 10 million users है, that server won't be able to handle that request, right? Even though the code which we had written was very optimal, we had done proper indexing and everything, but क्या वही resource manage कर लेगा? It will be very hard, slow हो जाएगा, because it has to do a lot of processing. So that is where scaling comes into picture. So the direct scalings are two, like horizontal scaling and vertical scaling. What does it mean? Horizontal scaling होता है कि let's say आपके पास एक सर्वर था, आपने दूसरा सर्वर ले लिया, तीसरा सर्वर ले लिया, आपके पास 3 सर्वर हो गए. If your server A was able to handle a load of 10,000 users, now since you have 3 resources, you can distribute the incoming traffic, and अब वो अगर आप 1000 कर पा रहे थे तो now it can handle 3000 users. Just giving an example. So this is horizontal scaling. Now vertical scaling क्या होता है? Vertical scaling is, let's say आपके पास 4 GB RAM का एक सर्वर था and आपका CPU usage 90% पहुंच गया है. So now अगर आपके पास users और बढ़ते जाएं, so अब तो वो 100% आ जाएगा तो क्रैश कर जाएगा, नहीं हैंडल कर पाएगा सब, it will freeze for everyone. So if you increase the RAM from 4 GB of RAM to 16 GB कर लिया, 32 GB कर लिया, that is vertical scaling. कि आपने अपना रिसोर्सेज के नंबर्स नहीं बढ़ाए, आपने अपने रिसोर्स का जो कैपेसिटी था, यू इंक्रीज दैट इज वर्टिकल स्केलिंग. सो उससे भी क्या हुआ, अब आप लोड ज्यादा हैंडल कर पा रहे हो. नॉट टोटली डिपेंड्स कि आपके लिए क्या ऑप्टिमल है, आपके मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस यू कैन डिसाइड कि आपने और रिसोर्सेज ऐड करने हैं, कैपेसिटी बढ़ाना है. पीपल ऑल्सो डू कि छोटे छोटे रिसोर्सेज बढ़ा लिए चंक्स और
एक दो बड़े कंप्यूटिंग रिसोर्सेज रख लिए जिन पे ज़्यादा कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जिनको ज़्यादा कंप्यूट रिसोर्स चाहिए, जिन पे कॉल्स को वो प्रोसेसिंग हम वो वहाँ करा रहे हैं, सो दैट कैन ऑल्सो बी डन. सो फिर आता है वेल आई एम मोस्टली इनटू नोड जेएस. तो नोड जेएस एंड बाकी बहुत सारे होते हैं जो मल्टी थ्रेडेड होते हैं, उनमें ये इशू नहीं आता होगा. बट फॉर नोड जेएस में क्या होता है कि सिंस जेएस इज सिंगल थ्रेडेड, तो हम वी नीड टू यूज क्लस्टरिंग मॉड्यूल जो नोड जेएस में होता है. व्हाट इट ऑफर्स इज कि इवन दो इट इज सिंगल थ्रेडेड, हम एक इंस्टेंस के मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेसेस बना सकते हैं. सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड फॉर्क इन Node.js. सो हम फॉर्क करके एक ही इंस्टेंस के मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेस बना सकते हैं, एंड दैट इज हाउ वी कैन यूटिलाइज द मल्टी कोर सिस्टम. सो अभी तो सिंगल कोर तो कुछ चलता नहीं है, देर आर ऑलवेज मल्टी कोर. जितने भी आप इंस्टेंसेस वगैरह लो, यू गेट टू सी कि आपका ऑक्टा कोर है, एक्सा कोर है, क्या है, कितने कोर्स है. सो इफ यू क्रिएट चाइल्ड प्रोसेस, दैट इज व्हेन कि आप पैरेलली आपके कोर के बराबर चीजें प्रोसेस कर पाओगे. अगर आपका डुअल कोर है तो 2 प्रोसेस आप साथ में कर पा रहे हो. अगर आपका चौकटा है तो 8 साथ में कर पा रहे हो. यू विल बी एबल टू यूटिलाइज की पैरेलल प्रोसेसिंग वाली जो पार्ट आती है. सो इवन दो JS is single threaded, your machine isn't, right? Your machine can do multiple things parallelly. So we utilize that by using clustering in Node.js to do async processing. फिर आता है load balancing techniques. So what is load balancing? कि if we are getting let's say 100 traffic, 100 requests आ रहे हैं, and हमारे पास 3 सर्वर है या 4 सर्वर है, how do we distribute all those 100 requests to these 4 servers? उसी को बोलते हैं load balancing. अब load balancing में हमारे पास commonly तरीके तो बहुत सारे होते हैं, but जो let's say there is one technique called round robin. So how it works is let's आपके पास 4 सर्वर थे, सर्वर A B C D. 100 रिक्वेस्ट आए. पहला रिक्वेस्ट इट केम, इट वेंट टू सर्वर A. सेकंड रिक्वेस्ट वेंट टू सर्वर B, वेंट थर्ड C, फोर्थ D. नाउ व्हेन द फिफ्थ रिक्वेस्ट केम इन, इट अगेन वेंट टू सर्वर A. सो इट गोज इन अ साइकिल राउंड रॉबिन में, कि वो साइकिल सर्वर ऐसे एक एक करके वन बाय वन जाता रहता है. दिस इज हाउ इट डिस्ट्रीब्यूट्स द ट्रैफिक. इट डजंट, तो इसका कॉन्स ये है कि इट डजंट चेक कि वेदर दैट सर्वर A, हो सकता है कि सर्वर ए के पास जो पहले रिक्वेस्ट गया, हो सकता है कि दैट वाज ए प्रीटी बिग रिक्वेस्ट एंड इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, एंड हो सकता है कि बाकी जो सर्वर बी सी डी है ये फ्री हो गए हों, बट ए अभी भी वो कर ही रहा है, एंड मे बी वो थोड़ी देर तक वो करता ही रहेगा, बट स्टिल सर्वर ए को दूसरी रिक्वेस्ट चली गई. तो यहाँ पे डिसएडवांटेज आ जाता है राउंड रॉबिन में, कि क्योंकि वो चेक नहीं करता कि उसकी पूल एम्प्टी है, उसके पास उसके स्टैक में कितने अभी क्यू में है, वो इट डजंट चेक, इट जस्ट एलोकेट्स. ओके, हमारे पास सिस्टम है, मैं भेज दूंगा, वो करेगा जब भी रिटर्न करेगा. दैट इज राउंड रॉबिन. फिर आता है देन देयर इज लीस्ट कनेक्शन वाला. तो लीस्ट कनेक्शन केस में क्या होता है ना, कि इट चेक्स कि कितने कर सकते हैं, मतलब लेट्स से सर्वर है, सर्वर बी, सर्वर सी, सबका वो चेक करेगा कि सीपीयू यूसेज क्या है, मेमोरी कितनी फ्री है, सब कुछ वो चेक करेगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट इट विल एलोकेट कि हाँ मुझे लेट्स से इट पहले तो in the first 4 requests it will give to all server A, server B, C, D. अब now while all of them were working, the fifth request comes in, it will check कि किसकी CPU यूसेज कम है, किसके पास मेमोरी कंजम्पशन कम है, एंड किसका अभी थ्रेड सबसे कम है क्यू में डेटा, उसके पास it will allocate, because it knows, it is smart enough, it is intelligent, very intelligent in the round robin case. It will give to that server जो पहले प्रोसेस करेगा. So that is a smart way to do it. So that is one kind of load balancing. अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया, ऊपर से पार हुआ कुछ, एनीथिंग? सन्नाटा है, या तो कुछ नहीं, आई गेस ऑल गुड. अरे बढ़िया. ऑल राइट, कमिंग टू नेक्स्ट. अब द थिंग इज, अभी जैसे हम स्केलिंग की बात कर रहे थे राइट, इससे पहले वाले डेक पे, कि हमें रिसोर्सेज बढ़ाने होते हैं, रिसोर्स की कैपेसिटी बढ़ानी है, या तो हम रिसोर्स ही ऐड कर रहे हैं, या तो हम लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं. ये हम कब करेंगे? जब हमें पता चलेगा कि ओ शिट, हमारा इतना ज़्यादा कंज्यूम हो गया. बट वो हमें पता कब चलेगा? अब फटने के बाद तो पता नहीं चलेगा कि भाई ओ फक फट गया, अब तो अब हम जाके बढ़ा रहे हैं रिसोर्स.
तो उसके लिए वी हैव टू हैव ए प्रॉपर मॉनिटरिंग इन प्लेस कि हाँ कि जहाँ से हमारे रिसोर्स मॉनिटर हो रहा हो एंड जहाँ से हमें अलर्ट्स वगैरह हमें आ जाए कि हाँ भाई इतना 90% रैम कंज्यूम हो गया. सो we need to have monitoring on whichever servers we have. So the common ones देखो AWS हो गया, GCP हो गया, इनमें तो मॉनिटरिंग होती है. अगर आप अपना खुद का अगर VM इंस्टेंस वगैरह रन कर रहे हो तो उसमें यू कैन क्रिएट योर ओन मॉनिटरिंग सेटअप एज वेल बाय यूजिंग लाइक ओपन सोर्स होता है, Prometheus है, Grafana है. So Prometheus क्या करता है, it collects, you can send your data, it collects all the metrics from your system by scraping all the HTTP endpoints that you expose, and in any specific format, and it checks your CPU usage, memory usage, request rate, error rate, ये सब चीजें Prometheus can collect. It has a very high availability. And then with Grafana you can visualize all those data which was collected by Prometheus. You can make visual representation depending upon आपके organization को कौन से data की need है, which key metric will help your organization to analyze better. Depending upon that you can set up those visual charts with Grafana. So ये हुआ monitoring के लिए. And यहाँ पे मैंने logging भी क्यों add कर दिया है? Well, I mean, in any case, because you're talking about backend, logging helps a lot. If you have a good logging in place, the thing is, let's say आपका कुछ break कर गया, prod पे, staging पे, कहीं पे कुछ break कर गया, how do you backtrace? Internal testing में क्या है कि पता पूछ लिया कि भाई how did you, मतलब it is easy to replicate because you can ask someone कि अच्छा ऐसे हुआ था, इस केस में error आ रहा है. But there can be edge cases which have been missed, जहाँ पे चीजें फट सकती हैं. And if some of the user किसी ने face किया कि हाँ कहीं पे कुछ फटा, तो क्या फटा, किस फंक्शन में फटा, हाउ डू वी नो दैट? सो दैट इज वाई वी नीड लॉगिंग, कि आपके जितने भी फंक्शन कॉल है, जितने भी एंड पॉइंट्स हिट हो रहे हैं, कि वो लॉग करे, सक्सेस हो चाहे एरर हो, एवरीथिंग इट्स बेटर विल लॉग. सो कि हाँ इस फंक्शन को कॉल हुआ, ये पैराम पास हुआ था, रेस्पॉन्स क्या मिला था, एवरीथिंग वी नीड टू लॉग. सो वो जो लॉग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टू बैकट्रेस इंफॉर्मेशन कि ओके व्हाट वेंट रॉन्ग. Good, if everything is going good, you don't need to backtrace. चल रहा है, सही चल रहा है, क्या दिक्कत है? But if something goes wrong, which goes wrong very occasionally, कुछ तो होगा ही, कोड लिखा है इंसान ने, तो that is when logging helps. तब लगता है कि भाई अच्छा हुआ logging implement करा, वरना तो सर पड़ जाता, because पता नहीं चलता क्या हुआ है. So वहाँ पे help मिलती है काफी. Winston, Morgan, ऐसे npm कुछ पैकेजेस हैं, it helps कि आपको ट्रांसपोर्ट लेयर वगैरह क्रिएट करके दे देती है ओपन सर्च में, whatever your tool you are using. It helps. Then we have optimizing the database interactions. So यहाँ पे we are the same thing which I talked about कि index create करना, unnecessary joins वगैरह नहीं करना. These helps a lot in query, in any kind of database query, because आपके anyone who doesn't know about index, ये अच्छा raise your hand if you know about index. कि index क्या होता है in a database? इंटरेस्टिंग. ओके ठीक है, तो मैं बताता हूँ इंडेक्सिंग. इंडेक्स क्या होता है ना, कि फॉर एग्जांपल इट्स लाइक ए बुक यार, कि जैसे आपने जब भी बुक्स वगैरह पढ़ते होगे, आपके पास एक टेबल ऑफ कंटेंट होता है, राइट? इफ यू रेफर टू दैट टेबल, इफ यू वांट टू फाइंड कि यार ये कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, तो यू कैन जस्ट गो टू द टेबल ऑफ कंटेंट एंड वहाँ पे देखते हो अच्छा चैप्टर नंबर 8 पे ये चीज है, तो विद इन वी मूव टू चैप्टर नंबर 8 एंड वहां से हम पढ़ना चालू करते हैं. द सेम वे इट हैपेंस विद डेटाबेसेस एज वेल. लेट्स से हमारे पास बहुत सारे एंट्रीज है यूजर टेबल में, बहुत सारे यूजर्स हैं, एंड इफ वी चोज कि आई विल मेक एन इंडेक्स फॉर दिस, कि ईमेल वाला जो कॉलम है इसको मैं इंडेक्स करूंगा, तो उसमें क्या होगा कि जो टेबल ऑफ कंटेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर कलेक्शन और फॉर दैट पर्टिकुलर टेबल, उसका एक इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा ईमेल, कि हाँ दिस इज द पर्टिकुलर ईमेल, एंड वो एक की वैल्यू मैपिंग जैसा कि ये इस ईमेल के लिए इसका जो डेटा है दैट इज एट पर्टिकुलर दिस मेमोरी एड्रेस. इस मेमोरी के एड्रेस में अगर आप जाओगे तो सीधा यू कैन पिक दैट डेटा. सो एक लुकअप इंडेक्स, एक लुकअप टेबल ऑफ कंटेंट बन जाता है फॉर ए डीबी. सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर ए एपीआई कॉल कम्स फॉर दैट पर्टिकुलर ईमेल, कि हाँ मुझे गेट बाय ईमेल करना है, गेट बाय फिल्टर करना है, हमने ईमेल पास किया है, इट चेक्स कि क्या हमारे इंडेक्स में है. इफ अगर वो इंडेक्स में है इट इज वे फास्टर. तो जब भी हम क्वेरी करते हैं कोई भी चीज जो हमारा एक कॉमन मेट्रिक है, लेट्स से हम ईमेल से ज्यादा कर रहे हैं, यूजर आईडी से ज्यादा कर रहे हैं रिट्रीव, उसके लिए बेटर होता है कि हम उस पर्टिकुलर के मेट्रिक को हम इंडेक्स कर दें.
it becomes way faster. फिर आता है कि हम सबको इंडेक्स क्यों नहीं कर दें, सब कुछ फास्ट हो जाएगा, बट या इंडेक्सिंग कम्स एट अ कॉस्ट. अब इंडेक्स करोगे, आपके पास डेटा साइज काफी ज्यादा है, तो काफी एमबी कंज्यूम करेगा, बहुत ज्यादा जीबीज में आएगा, टीबीज में. तो इंडेक्सिंग कम्स एट अ कॉस्ट, सो वी डोंट इंडेक्स एवरीथिंग, वी इंडेक्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आप क्वेरी करोगे, फिल्टर में लगाओगे एंड डेटा गेट करोगे. तो दैट इज वन. फिर कैशिंग स्ट्रैटेजी, जो हमने बात की थोड़ी देर पहले, नेटवर्क परफॉर्मेंस में भी बात की उसके बारे, कि अगर हम कैश कर दें, सो इट रिड्यूसेस, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमाइजिंग डेटाबेस इंटरेक्शंस, राइट. सो कैशिंग में क्या होता है कि यू आर टेकिंग द लोड ऑफ द डेटाबेस सर्वर, कि भाई डेटाबेस सर्वर को मत छेड़ो, अगर कैश में डेटा है ऑलरेडी. डीबी इज एक्सपेंसिव ऑपरेशन, डोंट डू दैट. इफ यू हैव द डेटा इन कैश से उठा लो. सो कैश हेल्प्स अ लॉट. कैश डेटाबेस सर्वर का सरदर्द कम करके रखता है. ओके. और हाँ, कैश अगर नहीं हुआ तो भाई हर डेटाबेस सर्वर का सीपीयू कंजम्पशन, मेमोरी कंजम्पशन हमेशा हाई ही रहेगा. बहुत रीड आईओ हो रहा होगा बार बार, एंड बिल्स भी बहुत हाई होंगे. फिर आ जाती है कनेक्शन पूलिंग फॉर बेटर परफॉर्मेंस. सो व्हाट इज कनेक्शन पूलिंग? The thing is, so problem is without connection pooling, the time spent opening and closing connections can slow down application performance, especially under heavy load. So जब भी ट्रैफिक ज्यादा होता है एंड बार बार हम डीबी रीड डीबी से डेटा को गेट कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, सो उसमें क्या होता है कि अगर हम कनेक्शन पूलिंग करके नहीं रख रहे हैं सही से, तो बार बार कनेक्शन ओपन करनी पड़ती है, रीड, फिर देन कनेक्शन को क्लोज भी करनी पड़ती है. दिस इज हैपनिंग बार बार. But when your application starts, a pool of database connections is created and maintained in the memory. And this pool contains a predefined number of connections that are ready to be used by the applications. So उसका मतलब क्या है कि let's say अगर आपकी connection, if you have a better connection pooling, so connections stay alive. So whenever a new get request comes in, उसको बार बार ओपन और क्लोज नहीं करना है. और कनेक्शन ओपन है, वो जाके सीधा डेटा रीड कर रहा है. इफ यू अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो इट्स बेटर टू हैव अ बेटर कनेक्शन पूलिंग एंड नॉट ए ओपन क्लोज वाला कनेक्शन. नाउ क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अगर ये फास्टर है, तो हम इसको ओपन करके क्यों नहीं रख देते हमेशा के लिए, राइट. द थिंग इज, अगर हम ओपन करके रख देंगे तो it has other, the thing is, अगर आपके यूज उतने ट्रैफिक नहीं आ रही है, अगर आपने ओपन करके रखा हुआ है, तो इट कैन ईट एक्स्ट्रा रिसोर्स, आपका सीपीयू का रिसोर्स ज्यादा खाएगा. आप रिसोर्स तब ज्यादा स्पेंड करने के लिए आप एग्री करोगे और एक्चुअली यूजर आ रहे होंगे, ट्रैफिक आ रहे होगा एंड एक्चुअली उसकी जरूरत होगी तो. एंड इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, वी बेटर डोंट यूज कीप कनेक्शंस अलाइव फॉरएवर. फिर आती है हैंडलिंग कंकरेंसी. सो व्हाट डू यू नो कि व्हाट इज कंकरेंसी? एनी आइडिया कंकरेंसी क्या होती है? कंकरेंसी कम्स फ्रॉम द वर्ड कंकरेंट, कि होता है ना कि मैं कुछ कर रहा हूँ, साथ में किसी ने और कुछ भी करने बोल दिया, तो अभी हमें वो कंकरेंटली हमें प्रॉब्लम आ गया, भाई मैं तो कुछ और कर रहा हूँ. सो हाउ डू वी टैकल दैट, कि अगर हमने एक सर्वर का एक रिक्वेस्ट भेजा, फिर और भी कुछ रिक्वेस्ट भेजा, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भेज दिया, तो हाउ विल इट डू पैरेलल थिंग्स concurrently? So that is where we need to leverage. So JS में होता है promises, होता है async await होता है. We need to leverage the power of that, because by using that we can make asynchronous code, कि हम हमारा जो कॉल स्टैक है उसको फ्री कर सकते हैं. जिन चीज़ों के लिए हम बाकी मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, उनको हम कॉल बैक क्यू में भेज देंगे बाय यूजिंग, मतलब सो वी नीड टू लेवरेज दिस, कि async await जहां हम यूज कर सकते हैं, वी शुड डू दैट, ताकि मेन थ्रेड को ब्लॉक करके ना रखे. देन वी शुड इम्प्लीमेंट वर्कर थ्रेड्स, जहां पे भी हमारा रिसोर्स इंटेंसिव चीजें होना है. लाइक वी नो दैट दिस इज गोइंग टू टेक a lot of resource, this is going to take some time. उसके लिए हम मेन थ्रेड को ब्लॉक ना करके हम वर्कर थ्रेड बना दें, एंड उस कंप्यूट को हम वर्कर थ्रेड पे करें. सो what worker thread does is, worker thread allows you to run a JavaScript code in parallel or on multiple threads, enabling it enables you to perform CPU intensive tasks without blocking the main thread. And why do we need it? Because Node.js is single threaded by nature.
meaning if any CPU intensive tasks like image processing or complex calculation or data parsing, कोई भी complex बड़ा data parse करना है, if it is performed on the main thread, it will block the whole event loop, and blocking that will make the application unresponsive to other incoming requests. So why अगर वो जब तक वो पार्स हो रहा है इमेज का प्रोसेसिंग अगर मेन थ्रेड पे हो रहा है, कोई भी दूसरा रिक्वेस्ट आया उसके लिए सर्वर अनअवेलेबल रहेगा, बहुत टाइम लगेगा. दैट इज वही चीज अगर हमने वर्कर थ्रेड इंप्लीमेंट कर दिया तो चीजें बैकग्राउंड में रन होगी, वो मेन थ्रेड पे ब्लॉक करके नहीं रखेगा. तो एनीथिंग व्हिच इज इंटेंसिव वी शुड ऑफलोड दैट, अवॉइड दैट टू डू दैट ऑन द मेन थ्रेड. दैट इज वन. फिर नेक्स्ट इज यूजिंग द क्लस्टर मॉड्यूल्स. जो क्लस्टर हमने वहां पे बात की कि वी कैन फोर्क एनी node instance and make child processes out of it, and by using child processes हम चीजें parallelly run कर सकते हैं, and all the child process will run parallelly and return us data. So we should definitely use that to use the full resource of our compute engine of the VM. जितने भी core हैं उसका जो max power use करने के लिए we should definitely use cluster module. Yeah. फिर आता है queue. So ये queue क्या है भाई? तो फॉर एग्जाम्पल सबने ये चीज कभी ना कभी तो फेस किया होगा आई थिंक, कि आप किसी साइट पे गए हो एंड आपने कुछ डेटा रिक्वेस्ट किया, रिपोर्ट जनरेट किया या कुछ भी किया, एंड वहां पे आया कि ओके यू विल गेट दिस, एक मेल पे आपको आ जाएगा जब भी ये डेटा प्रोसेस हो जाएगा. या फिर आपने देखा होगा कि वो उस पर भी होता है कि लेट्स से किसी वीडियो कंप्रेशन वाले वेबसाइट पे जाओ या फिर वीडियो को MP4 से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो वहां पे अगर आप जाओ एंड देन यू अपलोड योर फाइल, एंड फिर वहां पे कभी कभी आता है कि हाँ क्यूड, फिर उसके बाद आता है हाँ प्रोसेसिंग. तो वो जो क्यूड था वो क्या था, लाइक व्हाट वाज दैट? द थिंग इज कोई भी रिसोर्स जहां पे ज्यादा रिसोर्स चाहिए, जहां पे ज्यादा कंप्यूट पावर चाहिए, अगर उसे हमने मेन अपने कोड पे कर दिया जहां पे अपना सर्विस लिखा हुआ है, सो many things will go into waiting, making the CPU usage to very high, and फिर 99% 100% आके सर्वर क्रैश कर जाएगा, रीलोड होना पड़ेगा. तो इसीलिए जो भी इंटेंसिव चीजें होती है ना उनको हम एक अलग जगह शिफ्ट ही कर देते हैं कि भाई तुम आराम से होते रहना. इट इज नॉट, मतलब जो भी नॉन क्रूशियल होती है कि होता है ना कि वी कैन वेट, इट इज जस्ट दैट कि टास्क इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम वेट कर लेंगे, जब होगा बस बता देंगे. तो उसके लिए वी इम्प्लीमेंट ए क्यू मैकेनिज्म, लाइक RabbitMQ होता है एक कॉमन, इट इज ओपन सोर्स, RabbitMQ यूज कर सकते हैं. देन देयर इज Kafka, अपाचे का आता है Kafka, तो वो यूज कर सकते हैं. व्हाट इट डज इज इट ऑफर्स ए क्यू, एंड लेट्स से मैं एक मूवी वीडियो कंप्रेशन का एक वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया, एंड तो अब क्या हुआ, हमारा जो जॉब है वो पुश हो गया क्यू पे. हमारा जो फंक्शन है कि हाँ इस पर्टिकुलर फाइल एड्रेस को हमें कंप्रेस करना है इसमें. सो नाउ दैट डेटा इज देयर ऑन द क्यू कि हाँ वी नीड टू प्रोसेस दिस. उसके बाद जो भी लोग और रिक्वेस्ट करेंगे वो रिक्वेस्ट ऐसे करके प्रोसेस हो जाएगा क्यू में. अब वो 1 by 1 प्रोसेस होगा, लाइक लेट्स से वो रिक्वेस्ट ए प्रोसेस हो गया, रिक्वेस्ट बी प्रोसेस हो गया, रिक्वेस्ट सी प्रोसेस हो गया. अब उसका कॉल बैक होगा कि ए प्रोसेस होने के बाद किसे करना था मेल, किसे नोटिफाई करना था, बी करने के बाद किसे नोटिफाई करना था, वट एवर वॉज द कॉल बैक, वो कॉल बैक अभी इम्प्लीमेंट होगा. बट द थिंग इज बिकॉज वो जो रिसोर्स इंटेंसिव था वो क्यू में चला गया, तो हमारा मेन थ्रेड तो फ्री था, हमारा जो सर्विस था वो सर्विस तो फ्री था. हमारे जो यूजर्स जो अपलोड कर रहे थे अपने अपने वीडियोस या इंटरेक्ट कर रहे थे उनको तो हैम्पर नहीं हुआ. दे डिडंट सी एनीथिंग स्लो, राइट? फॉर देम एवरीथिंग वाज अवेलेबल, एंड व्हेनेवर द task is done they get the email. So that is where the queue architecture comes into place, and that is very crucial जहां पे भी CPU इंटेंसिव चीजें हो रही होती हैं. हाँ, तो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. दैट इज कि अगर हमने इतना सारी चीजें बनाए, हम स्पीड टेस्ट कर रहे हैं, एफिशिएंसी टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें हमने जो कोड लिखा है उसका हमें टेस्टिंग भी तो करना है कि कितना लोड झेल पाएगा. ये मैंने लिख तो दिया है, लग तो रहा है कि भाई नेट से बेस्ट प्रैक्टिसेस देख के बना दिया, ये ऑप्टिमल है, बट कितना हैंडल कर पाएगा. सो उसके लिए कुछ npm पैकेजेस वगैरह मिलते हैं नोड पे, लाइक आर्टिलरी हो गया, लोड टेस्ट हो गया. सो इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें हम अपना वो देख सकते हैं कि अपना टारगेट URL हमने दे दिया कि हाँ ये हमारा एंड पॉइंट है. हम अपने ड्यूरेशन दे देंगे कि हाँ हम मुझे इतने मिली सेकंड तक हमें
इस पे डेटा भेजते रहना है। एंड अराइवल रेट हम दे सकते हैं कि हमें किस रेट में चाहिए, कि इतने इतने ड्यूरेशन में आता रहे, 10-10 मिलीसेकंड में डेटा आता रहे। हम इसमें बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि डेटा का फॉर्मेट क्या रहेगा, डेटा कौन सा डेटा रहेगा, क्या क्या फील्ड्स होंगे, बहुत सारी चीजें हम डाल सकते हैं कि हाँ। फिर उसके बाद वो क्या करता है ना, वो सारे डेटा को वो पूरा डंप करता रहेगा आपके एपीआई पे, डिपेंडिंग अपन आपने कॉन्फ़िगरेशन जो भी बना के रखा है। कि लेट्स से अगर आपने डाला है कि भाई मुझे 10 मिनट में इतने मिलियन चाहिए, 10 मिनट में मेरे को 50,000 रिक्वेस्ट चाहिए, तो इन दैट केस यू कैन रन दैट कि हाँ भाई मैंने अपना आर्टिलरी मैंने शूट कर दिया। एंड उसके बाद देन यू कैन मॉनिटर कि हाँ कि मेरा कितना कंजम्पशन हो रहा है। यहाँ पे आपका याद वो आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रोमेथियस ग्राफाना, जो आप अपने लोकली सिस्टम पे भी चला सकते हो, देख सकते हो। फिर आई वाज टॉकिंग अबाउट नोड प्रोफाइलर, राइट, कि हम cleanly.js रन कर सकते हैं, नोड का इनबिल्ट प्रोफाइलर आता है वो रन कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि विच पर्टिकुलर कोड ब्लॉक इज कंज्यूमिंग मोस्ट ऑफ माय सीपीयू रिसोर्स, कंज्यूमिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, ब्लॉकिंग द इवेंट लूप, और any kind of data which you need, you can पहले से simulate, you don't have to wait for actual users कि भाई जब आएंगे तो देखेंगे कि क्या होता है, क्या फटेगा। So आप पहले ही उसको simulate कर लोगे by using these kind of tools, so you will know कि हाँ how you will know, you will have an idea कि हाँ इतना लोड तो मेरा हैंडल कर लूंगा मैं इजीली, इसी सर्वर में हो जाएगा, मुझे सर्वर की स्पेस बढ़ाने की जरूरत है या नहीं, कैपेसिटी बढ़ानी है या नहीं, स्केल करनी है, मतलब और रिसोर्स ऐड करने हैं। यू कैन टेक दोस काइंड ऑफ डिसीजंस, यू विल नो कि हाउ मच लोड कैन माय कोड, माय इंफ्रा कैन हैंडल। सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी मच नीडेड। Yeah, I think that is it. Okay, I guess we can wrap up. So, thank you so much, Pramod, for like come and taking your sessions on backend optimization part. And it's really great. And thank you so much, everyone, for joining us. And see you in the next event. And thank you. Have a nice Yeah, thank you so good much, night. guys. Happy weekend. Yeah, Bye bye. yeah.